Good evening, students. Uh, in lecture 4, we have studied about ionic bonds. What are ionic bonds? Now we are moving to our last part of the chapter, that is lecture 5 today. Occurrence of metals. Now, metals, how do they occur? Occurrence of metals. How do metals occur in nature? Metals generally occur in two forms, that is in the free state और combined state. अब कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल फ्री स्टेट में है, कौन सा मेटल combined स्टेट में है? सोचो, किसी के दिमाग में आंसर आया? So how do we get it to know? We get it know by the reactivity series. Reactivity series के basis पे. तो reactivity series सोच लो कितना important है. फर्स्ट चैप्टर से लेके थर्ड चैप्टर तक रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर में. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज नेचर में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं आइदर इन द फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म. फ्री मतलब खुले घूमना, अकेले घूमना. फ्री होना मतलब अकेले, जैसे पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे हैं, आपको घर पे अकेला छोड़ के, तो यू आर फ्री. बट व्हेन पेरेंट्स आर व्यू, यू आर इन द कंबाइंड स्टेट, राइट? सो सेम वे मेटल्स अकर्स इन फ्री स्टेट व्हेन दे आर अलोन, एंड कंबाइंड स्टेट मतलब वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में है. ठीक है. So the less reactive metals like silver, gold and platinum are generally found in free state, and the metals like most of the metals are formed in the combined state and they are in the form of minerals. And what are minerals, that we will study. बहुत लोगों को आइडिया होगा मिनरल क्या है, बट फिर भी हम आगे गो थ्रू करेंगे. Now metals in nature, as I said you, they are in two forms, that is they are in the two forms, combined state in the free or native state, silver, gold, platinum and mercury, and in the combined state, sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, aluminium, copper, etc. and so on. Occurrence of metals. The earth crust has the major source of metals. earth crust में major source of metals है. हम लोग को जो metals मिलते हैं वो हमारे earth crust से majority मिलते हैं in the form of minerals. Now what are minerals? They are the naturally occurring element present in the earth crust. Naturally जो occur होता है element आपके earth crust में, हम उसको minerals बोलते हैं. They are mixed with our earthly materials. Okay. And what are ores? जो mineral for example, what are ores? A mineral from which a metal can be extracted. वो mineral जिसमें आप metals extract कर सकते हो on commercial scale at a very cheap cost, or you can say very easily, उसको हम ores बोलते हैं. ठीक है. सो यू कैन से अ स्टेटमेंट दैट एवरी ओर इज अ मिनरल. हर एक और मिनरल है, बट हर एक मिनरल और नहीं है, क्योंकि सारे मिनरल्स आपको इकोनॉमिकल प्रॉफिट नहीं देते. ठीक है. वही मिनरल्स जिसको एक्सट्रैक्ट करना ईजी होता है ऑन कमर्शियल स्केल एंड गिव्स यू अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर नोन एज ओर्स. ओके. वी विल सी कौन से ओर्स आपको इकोनॉमिकल प्रॉफिट दिखते हैं आगे की स्लाइड में. नाउ दिस आर सर्टेन डायग्राम आप देख सकते हो. यहाँ पे और है मिनरल्स है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट. ठीक है. देन योर बॉक्साइट, कॉरंडम and so on. So this are nothing but your ores of minerals. Okay. ores of aluminium है ये आपका, ores of hematite है, magnetite है, limonite है, and bauxite. Now bauxite formula याद रखना, Al2O3.2H2O. It is the most abundant mineral, most abundant ore. Okay. And clay are the minerals of aluminium. They both are minerals. However, the main ore of aluminium is bauxite, क्योंकि ये आपको easily extract हो जाता है and बहुत अच्छा economical profit देता है. ठीक है. Clay cannot be used as an ore. Why clay cannot be used as an ore? Because it is silicate mineral and silicate minerals are not easy to process. उसका extraction easily possible नहीं है. Names of the some common ores of iron: oxide ore, hematite. ओर्स को भी आगे क्लासीफाई किया गया है. ओर्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ओर्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मेटल कंपाउंड प्रेजेंट इन इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ द मेटल इज प्रेजेंट विथ ऑक्साइड, इट इज़ नोन एज ऑक्साइड ओर. अगर वो कार्बोनेट के साथ है, CO3 के साथ, जैसे एल्यूमिनियम अगर कार्बोनेट के साथ है तो वो एल्यूमिनियम का कार्बोनेट ओर हो गया. सल्फाइड ओर्स, अगर एल्यूमिनियम सल्फर के साथ है तो वो सल्फाइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम हो गया. अगर वो हेलाइड इन द सेंस हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आर नोन एज हेलोजेंस. अगर एल्यूमिनियम आपका क्लोरीन के साथ है तो वो हेलाइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम हो गया. ठीक है. सो ओर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, सल्फाइड ओर्स एंड हेलाइड ओर्स. ठीक है. So these are the common examples. As you can see, formulas याद रखना. हेमेटाइट Fe2O3, it is the most used ore. जो आयरन जिससे एक्सट्रैक्ट करते हुए हेमेटाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ईजिली एक्सट्रैक्ट हो जाता है. देन कम्स योर मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट. कार्बोनेट और आयरन का क्या है, सिडरेट है.
एंड सल्फाइड ओर्स क्या है, आयरन ऑफ पायरेट्स। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, गिव सर्टेन ओर एग्जांपल्स ऑफ आयरन, तो आपको ये लिखना होगा, ऐसे नहीं लिखोगे ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर, एग्जाम्पल लिखोगे विद द हेल्प ऑफ दिस। हेमेटाइट का फॉर्मूला, मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन, ठीक है, एंड सो ऑन. Now, name some common, these are the common ores of aluminium you can see over here. Bauxite, then this one, fluoride, cryolite, silicate ore, feldspar, formulas देखो उनके. And name of the some common ores of zinc देखो, zinc blend, calamine, ठीक है, zinc के. zinc blend कौन सा और होगा, zinc किसके साथ है, सल्फर के साथ है, तो कौन सा और हो गया, सल्फाइड और. कैलेमाइन में जिंक किसके साथ है, CO3, CO3 कौन क्या होता है, कार्बोनेट, तो ये कौन सा और हो गया, जिंक कार्बोनेट का और. जिंकेट ZnO ऑक्सीजन के साथ है जिंक, तो कौन सा और हो गया, ऑक्साइड और. तो आई होप द क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू. हाउ आर ओर्स क्लासिफाइड, ओर्स आर क्लासिफाइड ऑन द basis of type of metal compound present in it. If it is present with oxygen, it is known as oxide ore. If metal is present with oxide, it is known as oxide ore. If the metal is present with carbonate, it is known as carbonate ore. If the metal is present with sulfide, it is known as sulfide ore. And if the metal is present with halide are known as halogens, then it is known as halide ores. Okay. Now some of the diagrams, as you can see, these are the diagrams, ores of lead and gold. lead का ore देखो, ये lead का ore है, ठीक है, ये गैलेमाइन है, lead का ore गैलेना, ये आपका गोल्ड का ओर है, ऐसा दिखता है मिनरल, ठीक है. बॉक्साइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और भी बहुत वेराइटीज़ होते हैं. सिनेबर विच इज़ द ओर ऑफ मर्क्यूरी, सल्फाइड ओर यहाँ पे है देखो, HgS लिखा है मैंने, सिनेबर HgS सल्फाइड ओर फॉर्मूला, ठीक है. इसका एक्सट्रैक्शन भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है. दे डायरेक्टली आस्क यू द 3 मार्क्स स्टेप ऑफ हाउ से मर्क्यूरी इज बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनेबर, ठीक है. क्योंकि हम लोग को मेटल्स चाहिए उसमें से, हमको उनका ओर्स नहीं चाहिए, हमें मेटल्स चाहिए. जैसे ये सारे ओर्स है Al2O3.H2O, तो इसमें से सिर्फ मुझे एल्यूमिनियम चाहिए, मुझे Al2O3 पूरा नहीं चाहिए, एल्यूमिनियम पूरा चाहिए, तो मुझे उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो वही चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. हम पहले देख रहे हैं कि अकरेंस कैसा होता है मेटल्स का, और उस अकरेंस ऑफ मेटल से हम कैसे हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वही हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं इसमें, ठीक है. लाइमस्टोन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, CaCO3, ठीक है. कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज लाइमस्टोन, ये चौक है, चौक का लाइमस्टोन है ये. देन हेमेटाइट ओर ऑफ आयरन, आयरन का हेमेटाइट ओर फॉर्मूला याद है क्या, आगे देखा आपने वीडियो में, अच्छे से फॉर्मूला याद किया, दैट इज Fe2O3 इज द हेमेटाइट ओर ऑफ आयरन. रॉक सॉल्ट NaCl, ठीक है, इज योर रॉक सॉल्ट ऑफ सोडियम. नाउ और समझ में आया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज गैंग्यू, ठीक है. व्हाट इज गैंग्यू, ores usually contain large quantities of unwanted earthly materials. This unwanted earthly materials is nothing but your dust, sand and dirt, ठीक है, dust, sand and dirt. So that unwanted particles in an ore is called gangue. So ores contains a large quantity of unwanted earthly materials, और earthly materials अगर नहीं लिख रहे हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, dust, dirt and sand in the present in the ore is known as gangue. उसको क्या बोला जाता है, gangue, ठीक है. Now next is what is metallurgy. मेट्रोलॉजी, हम मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी, अकरेंस ऑफ मेटल्स में हम मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं. हमने ओर्स देखा, व्हाट इज ओर्स, the minerals from which metals can be extracted on the commercial scale easily and gives economical profit is known as ores. different ores देखे आपने, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा इकोनॉमिकल प्रॉफिट देता है आपको, बॉक्साइट देता है, ठीक है. फिर आयरन के भी बहुत सारे ओर्स देखे आपने, ठीक है. ओर्स का क्लासिफिकेशन मैंने दिखाया. अभी नेक्स्ट इज व्हाट इज मेट्रोलॉजी. So what is metallurgy? The process of extracting pure metals from their ores is called metallurgy. अब मिनरल्स में से ओर्स ले लिया, ठीक है. सबसे पहले अकरेंस देखा हमने, फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट में मिनरल्स था, मिनरल्स में से क्या एक्सट्रैक्ट किया, ओर्स एक्सट्रैक्ट किया. अब ओर्स में से हमको क्या चाहिए, हमें हमारे मेटल चाहिए, प्योर मेटल चाहिए. तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी. Now, metallurgy has been divided, or you can say the extraction of metal from its ore is divided into various steps. First, crushing of the ore. Second, concentration or dressing of the ore.
थर्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड द फोर्थ इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब ये दो जो फर्स्ट क्रशिंग ऑफ ओर है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है वो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट हम एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको क्रशिंग ऑफ ओर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर समझाऊंगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स, आप मेट्रोलॉजी पार्ट आपका स्टार्ट हो चुका है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स ये पूछ लेते हैं। सो लेट अस सी हाउ इज फर्स्ट इज क्रशिंग। सो हाउ इज ओर क्रश्ड, ओर को कैसे क्रश करेंगे। सो जो बिग लम्प्स होते हैं ना ओर के, ये जो आप लम्प्स जैसे देख रहे हो बहुत बड़े बड़े होते, इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं बट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको इन रॉक्स को क्या करते हैं, पीसेस में कन्वर्ट करते हैं बाय स्मॉलर पीसेस बाय हैमरिंग इट इन अ हैमरी मिल एंड कन्वर्ट देम इनटू फाइन पाउडर्स। क्या करते हैं, उनको हैमर मिल लेते हैं, हैमर का मिल्स होते हैं, बड़े बड़े ग्राइंडर्स होते हैं आपके उसमें, तो उसको क्या करते हैं, उसमें हैमर से मारते हैं और क्रश करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप, हाउ इज ओर कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ पे अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग। अब मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग लिखा है तो मतलब कपड़े पहनाना नहीं, ओर्स को कपड़े पहनाना नहीं है, उसको पॉलिश करना, उसमें से डस्ट को रिमूव करना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हाउ इज एन ओर कॉन्सेंट्रेटेड। The removal of unwanted earth materials from an ore. The removal मतलब गैंग्यू, in short can I say गैंग्यू। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकती हूँ ना, गैंग्यू को रिमूव करना। गैंग्यू क्या था पता चला ना, अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द योर ओर इज नोन एज गैंग्यू। तो गैंग्यू को रिमूव कर रहे हैं इसमें से, ठीक है। From an ore is called concentration of ore. So the concentration of ore is also called dressing of ore. उसको क्या बोलते हैं हम, dressing of ore भी बोलते हैं। So based upon the nature of gangue and the ore, the following methods are generally used for the concentration of ores, ठीक है। उसको भी अभी डिवाइड किया गया है, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड एंड फ्रोथ रोटेशन मेथड। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ गैंग्यू एंड ओर के बेसिस पे, क्योंकि सारे गैंग्यू जो ओर है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसके बेस्ड पे ये तीन है, और भी बहुत सारे बट हम मेजरली ये तीन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। नाउ व्हाट हैपेंस इन हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, in this method the crushed ore is washed। crushed ore जो आपका जो क्रशिंग की है आपने, उसको वॉश करते हो विद द स्टीम ऑफ वाटर। किससे वॉश कर रहे हो, स्टीम ऑफ वाटर से वॉश कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, द लाइटर है, लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे। लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स क्या होगा, वॉश अवे हो जाएगा। एंड द हैवियर मिनरल पार्टिकल्स, जो आपका हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, हैवी चीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी एंड कैन बी ईजिली रिमूव्ड। क्योंकि आपको पता है ना गैंग्यू डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स है, तो ईजिली वॉश होगा और वो लाइटर वेट में होगा। तो ये उसका सेटअप है। सेटअप आप देखोगे तो यहाँ से पाउडर्ड ओर ऊपर से डाला जा रहा है, आपका पाउडर्ड ओर इसमें से डाल रही है, हाइड्रोलिक वॉशिंग का सेटअप है, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो, वाटर उसको स्टीम पास कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, गैंग्यू क्या हो रहा है, ऊपर से यहाँ से लाइटर वेट पार्टिकल से यहाँ पे रिमूव हो रहा है गैंग्यू, और आपका ओर क्या होता है, नीचे नीचे सेटल डाउन हो रहा है। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर टेक प्लेस हो रहा है। आई होप हाइड्रोलिक वॉशिंग इज क्लियर टू यू, ओके। Now next is magnetic separation method. So what happens in magnetic separation method? This method is used on difference in the magnetic properties of ore and gangue. हमने देखा ना concentration of ore दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ore और gangue पे, तो magnetic separation of ore and gangue पे डिपेंड कर रहा है। So the magnetic separation method is used only when either of the two that is ore और gangue is magnetic। इन दोनों में से एक मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी हम ये मैग्नेटिक सेपरेशन, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो द पाउडर्ड ओर, इसमें क्या होता है, जो पाउडर्ड ओर आपका है उसको आप एक कन्वेयर ड्रॉप करते हो कन्वेयर बेल्ट पे, तो मूविंग ओवर द टू रोलर्स, दो रोलर के ऊपर, इन विच मैग्नेट इज बिन प्लेस्ड, मैग्नेट को उसमें प्लेस किया जाता है। सो व्हेन द ओर पासिस ओवर द मैग्नेटिक रोलर, द मैग्नेटिक एंड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स फॉल सेपरेटली। जैसे ये आप डायग्राम देख सकते हो, क्या है, ये कन्वेयर बेल्ट है आपका, इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये आपके मैग्नेटिक रोलर है। तो इसमें से क्या होता है, आप जब इसको डालते हो तो ये पाउडर्ड ओर यहाँ से पास होना स्टार्ट करता है, और जो आपका मैग्नेटिक वाला होगा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नॉन मैग्नेटिक लाइटर पार्टिकल्स क्या होगा, धीरे धीरे फॉल डाउन होकर सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? सो दिस इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सो some typical ores which can be concentrated by magnetic separation method are pyrolusite, that is a manganese ore, chromite,
a chromium ore, magnetite and iron ore. I hope magnetic separation is clear to you. Last one, that is Froth Rotation method. Now Froth Rotation method, this process is mainly used for sulfide ores. आपको directly exam में 1 marks में question पूछा जाता है कि Froth Rotation method is used for which type of ores? It is mainly used for sulfide ores. Now what is the principle on this? This principle, the principle of this ores is mainly sulfide ores के लिए भी, but कभी कभी particularly zinc, copper और lead के लिए भी आप use करते हैं. Sulfide ores particularly of zinc, copper and lead. Okay. I am repeating it. Froth flotation process is used for concentrating sulfide ores, particularly of zinc, as you can say zinc, lead and copper. Okay. So what happens, what is the principle based on this? The Froth flotation process is based on the difference in wetting properties of the ore and gangue particles. Wetting properties in the sense वो किस में wet हो रहा है, ठीक है. So the sulfide ores mainly wet by pine oil. Sulfide ore किस में wet होते हैं? Pine oil में, एक type का oil है वो pine oil. Whereas the gangues are wetted by water. Gangues किससे wet होते हैं? Water से. So what happens in this process? So I hope the principle is clear to you. What is the principle of this? The sulfide ores particles are superficially किस में wet होते हैं? Pine oil में, whereas the gangue particles are wetted by water. So what happens in this process? The oil floats on water. Oils can wet sulfides and oils floats on water. So sulfide ores are first ground to powder and water is added. Sulfide ores को क्या करते हैं? ग्राउंडेड करते हैं और फिर उस पर पानी वाटर को ऐड करते हैं. सो देन पाइन ऑयल इज एडेड एंड द इमल्शन इज एजिएटेड. इमल्शन इज एजिएटेड बाय पासिंग कंप्रेस्ड एयर. इमल्शन क्या, इसमें क्या होगा? इमल्शन क्यों क्रिएट होगा? आपको इमल्शन पता है ना, व्हाट इज एन इमल्शन? ठीक है, ऑयल एंड उसका लेयर जैसा क्रिएट होना. एंड ऑयल एंड फ्रोथ on the surface along with the sulfide ores. So gangue particles insoluble होता है ऑयल में, तो remain कहाँ हो जाता है? बॉटम ऑफ द वाटर टैंक में जाके हो जाता है. And the froth is removed and allowed it to settle down. Froth in the sense झाग जैसा. The froth of the, you can see the froth of the bubbles carrying sulfide ores particles. ये froth झाग है, ठीक है, उसको हम फ्रोथ बोलते हैं. क्या कर रहे हो? कंप्रेस्ड एयर पास कर रहे हो तो सल्फाइड ओर्स पार्टिकल्स ऑयल के साथ ऊपर आ जाते हैं. ऑयल ऊपर फ्लोट करता है ना वाटर में, सो वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल और गैंग्यू नीचे पानी के साथ सेटल डाउन हो जाता है. तो इस वजह से आप द फ्रोथ इज रिमूव्ड एंड अलाउड इट टू सेटल डाउन. फ्रोथ को फिर ऊपर से रिमूव कर देते हैं हम इजीली, क्योंकि उसके साथ सल्फाइड ओर्स हो गया, और फ्रोथ को हम फिर उसमें से निकाल के और अलग से बीकर में तो उसमें से सल्फाइड ओर्स या फिर जो भी हमारा ओर्स है कॉपर या आपका लेड और जिंक उसमें से निकाल देते हैं. तो ये आपका डायग्राम सेम वही डायग्राम मैंने यहाँ पे वापस आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाया. कंप्रेस्ड एयर आप ले रहे हो, ठीक है, ऑयल और वाटर डाल रहे हो, फिर उसको सेटल डाउन कर रहे हो. अभी इसमें से ये झाग को क्या करते हैं, यहाँ से एक और बीकर अटैच करते हैं एंड ये फ्रोथ को उसमें ट्रांसफ़र करते थे और आपका उसमें से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर फिर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए उसको रख देते हैं. तो जो ओर है वो फ्रोथ में से नीचे सेटल, ओर इज़ हैवी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्रोथ, तो ओर धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाता है और आप उसमें से आपका कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हो. सो फर्स्ट 2 मेथड्स आपको क्लियर है कि मेट्रोलॉजी प्रोसेस के जो 2 मेथड है, दैट इज़ क्रशिंग ऑफ ओर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और रिफाइनिंग ऑफ मेटल. एंड बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए. थैंक यू.